Hello friends, this is Dr. Meenakshi. Welcome back to my channel. Today I'm here with task 2 of examination date September 2, 2023. ये जो टॉपिक सी ना लाइक एग्जैक्टली एक तो फॉर्म च आया सी एडवांटेजेस आउटवे तो कुछ बच्चे ने दस्सिया कि 2 वोट एक्सटेंड की फॉर्म च आया सीगा सो आप इस फॉर्म च करते पे बेटा एंड जो आप पॉइंट्स करांगे वो आप सेम ही लिखने सीगे दोनों केसेस दे विच राइट हाँ जी सो लेट्स वी चेक स्टेटमेंट फर्स्ट. In 21st century, the contact between many different parts of the world has developed rapidly. Through air travel and telecommunications, do the advantages outweigh disadvantages? So, what's the meaning of statement? 21st century ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ contact ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਜੀ between different parts of the world is all about the different nations. Yes, different parts of the world means different nations ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੰਬਰ 1 에ਅਰ ਟਰੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨੰਬਰ 2 ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਟੈਲੀ ਪਲੱਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਮੀਨਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਦ ਟੈਲੀਫੋਨਸ ਐਂਡ ਆਲ ਕਲੀਅਰ yes so ਕੀ ਇਹਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੀਫਰੇਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਸੇਇੰਗ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਦੈਟ ਯੂ ਵਿਲ ਸੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਦੈਟ the technology has ushered in every arena of life so the contact between the populations yes you can write here people लिख सकते हो populations की गल भी कर सकते हो populations of different segments of the world right has grown exponentially so developed grown पुत्र जी rapidly दी जगह ते ਆਪਾਂ लिखता exponentially so मैं शुरू किया है it is true that technology has ushered in every arena of life so what's the meaning of this statement मैं लिखिया भी ये सच है कि जी टेक्नोलॉजी है वो डेवलप हो चुकी है पुत्र जी ਉਹਦੀ शुरुआत हो चुकी है हर एक जिंदगी ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਲਾਈਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮੀਨਸ ਰੈਪਿਡਲੀ ਗਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਵਿੰਟੇਜ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਊਟਵੇ right otherwise disadvantages ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ so I would write there from my vantage point the merits overshadow the demerits which are associated with it ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਰਿਟਸ ਨੇ ਮੈਰਿਟਸ ਮੀਨਸ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਸੋ ਮੈਂ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਦੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ that technology has ushered in every arena of life मान के चलो कोई तुहानू टैक्नोलॉजी दे नाल रिलेटेड कोई भी टॉपिक आउंदा है तुहाडे कोल रीफ्रेजिंग लई एग्जैक्ट सिनोनिम्स नहीं हैगे तो तुसीं इत्थों भी शुरुआत कर सकते हो क्लीयर मीनिंग तुहानू दस्सिया पुत्र जी टेक्नोलॉजी हैज अशर्ड मीनस स्टार्ट हो चुकी है इन एवरी एरिना ऑफ लाइफ मीनस एवरी एरिया ऑफ लाइफ एरिना की हुंदा फील्ड एरिया क्लीयर पुत्र जी उस तो बाद लिखिए सो दोबारा दस रही है द कॉन्टैक्ट बिटवीन द पॉपुलेशंस फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड हैज ग्रोन एक्सपोनेंशियली थ्रू एयर ट्रैवल एंड टेलीकम्युनिकेशंस क्लीयर पुत्र इंट्रोडक्शन द फर्स्ट आप स्टेटमेंट देती है उस बाद सैकेंड में तुहानू दस्सिया फ्रॉम माई विंटेज पॉइंट करके तुसी अपना व्यू पॉइंट दोगे तुसी आई सरमाइज भी लिख सकते हो आई रैकन भी लिख सकते हो तो आई बिलीव भी लिख सकते हो ठीक है जिथे अपना व्यू पॉइंट देना यू विल राइट देयर आई रैकन आई बिलीव और आई सरमाइज ठीक है मीनिंग सेम है मेरे अकॉर्डिंग यस सो मैं लिखिया सी द मैरिट्स of the stated notion overshadow the demerits बेटा जी overshadow the meaning की होता है more than overshadow means more than ज़्यादा नहीं the merits overshadow the demerits which are associated with it ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ one side we will talk about disadvantages on another side we will talk about advantages clear चलो हाँ जी लेट्स वी स्टार्ट डिस्कशन विद द डिसएडवांटेजेस सो पुत्र आपां अगर लिख रहे हैं कि मैरिट्स ज़्यादा ने मीनस एडवांटेजेस ज़्यादा ने तो इन टोटल अपने टास्क दे विच 3 एडवांटेजेस लिखोगे तो 2 लिखोगे डिसएडवांटेजेस क्लीयर
सो फस्ट ऑफ ऑल आप शुरू करन लगे हैं डिसएडवांटेजेस तो जिदा आप अपनी इंट्रोडक्शन पार्ट लिखिया कि एडवांटेजेस ज़्यादा नहीं सो वट यू हैव टू डू यू हैव टू राइट 2 डिसएडवांटेजेस इन बॉडी पैराग्राफ 1 ओके सो जिदा आपको पता है आप एयर ट्रैवल की गल कर रहे हैं सो एयर ट्रैवल का मतलब कि अंडरस्टूड है पुत्र जी जोड़े एयर फ्लाइट ने राइट सो भी की करते हैं कंज्यूम करते हैं फॉसल फ्यूल यूज़ करते हैं जिदे करके एग्जॉस्ट होंगे ने फ्यूम्स फ्यूम्स एग्जॉस्ट होने का मतलब कि भी वो भी धुआं छड्डते हैं जिदे करके की होंदा है एयर पॉल्यूशन होंदा है बिल्कुल आप इत्थों ही शुरू करांगे कि जोड़ा इनीशियल अलार्मिंग लैवल ऑफ पॉल्यूशन है एयरक्राफ्ट तो वो हुण एक रूट कॉज बन चुकी है बहुत सारिया प्रॉब्लम्स का एग्जैक्टली इन ट्रांसलेट करते हैं सब तो पहला आई विल स्टार्ट विद द इनीशियल अलार्मिंग level of pollution is now लिख दो कित्थों पुत्र जी from aircrafts yes not craft sorry it's craft is now a root cause of many problems exactly so root cause बन चुके हैं बहुत सारिया प्रॉब्लम्स का इन अदर वर्ड्स आप अदर वर्ड्स दे विच गल करिए तो आप लिख सकते हैं पुत्र जी इन अदर वर्ड्स एयरक्राफ्ट एग्जॉस्ट फ्यूम्स एयरक्राफ्ट सिंगुलर भी एयरक्राफ्ट ही होंगे तो प्लूरल भी एयरक्राफ्ट ही होंगे राइट एयरक्राफ्ट नहीं होंगे सो एयरक्राफ्ट एग्जॉस्ट फ्यूम्स विच रिजल्ट इन एयर पॉल्यूशन that is why our environment is passing through the razor edge मतलब critical situation दे विचों दी लंघदा पिया साडा environment and we are facing the negative consequences of global warming exactly so that is all about first and foremost clear हो गया yes come to second disadvantage so we will start with submerged wires which are used to connect the different devices to the main network सो जिहड़ियां सबमर्ज्ड वायर्स होंदियां ने जिहड़ियां कि यूज़ कीतियां जांदियां ने किहदे लई पुत्र जी डिफरेंट डिवाइसिस ने जिहड़े उन्हां नूं मेन नेटवर्क दे नाल कनैक्ट करन दे लई सो दीज डिसरप्ट द वे बर्ड्स माइग्रेट सो बर्ड्स ने जिहड़ा माइग्रेशन दे लई जाना हुंदा बर्ड्स माइग्रेट दा मीनिंग आई होप तुहानूं पता होना मेन 2 रीजनस ने नंबर 1 फीडिंग पर्पस दे लई हुंदा नंबर 2 ब्रीडिंग पर्पस दे लई हुंदा राइट सो बर्ड्स किस तरीके नाल माइग्रेट करदे ने तां जिहड़ियां इह सबमर्ज्ड वायर्स ने ओह डिसरप्ट करदियां ने सो जिहदे करके जिहड़े माइग्रेटरी बर्ड्स ने पुत्र जी उन्हां दा नंबर डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स समझ आ गई सो किहड़ियां प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिहड़ियां कि उन्हां नूं आ रही ने जिद्दां फॉर एग्जांपल इन मेकिंग देयर वे बिटवीन द सीज एग्जैक्टली नहीं समझ आया थोड़ा टेक्निकल है तुसी सिंपल फॉर्म च लिख सकते हो जिद्दां आपां गल कर रहे हैं टैलीकम्यूनिकेशन की सबनूं पता है टावर्स आर देयर सो टावर्स की करते हैं रेडिएशंस नूं इमिट करते हैं जिहड़ियां कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल ने एग्जैक्टली सो जिहड़ियां ये रेडिएशंस ने यू कैन से दीज रेडिएशंस take a heavy toll not only on the lives of people but also on other creatures इनू इस तरीके नाल वधिया तरीके नाल लिख सकते हो ठीक है सो उन्हां दा सिर्फ नेगेटिव असर किदे ते नहीं पैंदा साडी जिंदगी ते नहीं पैंदा बल्कि अदर क्रिएचर्स ते भी पैंदा आ राइट सो ह्यूमन बीइंग्स दे विच जिहड़ी प्रॉब्लम आ रही है कैंसर दी डेवलपमेंट जिहड़ी हो रही है ओदा मेन रीजन रेडिएशंस नू मन्निया जा रहा क्लियर बट आई वुड प्रेफर टू राइट the technical point here by writing submerged wires which are used to connect the different devices to the main network disrupt the way birds migrate yes
किस तरीके नाल माइग्रेशन हुंदी है उन्होंने की करते हैं डिसरप्ट करते हैं एग्जैक्टली नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इज डिक्लाइनिंग सो जो नंबर है इन्हों का की हुंदा पिया डिक्लाइन हुंदा पिया एज दे फेस the problems in making their way between the seas exactly clear so they are died of starvation in the oceans ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਰਕੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਡਿੰਗ ਪਲੇਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਰਾਈਟ ਬਟ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਟਾਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ So these are the two negatives Putraji you have to write in body paragraph 1. Now come to body paragraph 2 in which we are going to write 3 advantages. 3 positives ਆਪਾਂ ਲਿਖਣੇ ਨੇ सो वन आप जी एडवांटेज लिखन चलने पहला सब तो पहला आप गल करांगे एयर ट्रैवल दी लिसन केयरफुली सो यू विल स्टार्ट विथ थैंक्स टू एयर ट्रैवल और थैंक्स टू एयर ट्रांसपोर्टेशन yes international tourism has become the backbone of many economies of the world so air transportation de karke jehड़ा international tourism है you all know the meaning of international tourism na means log ek country to दूजी country ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੈਕਬੋਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਦੀ yes सो किवें बन गए पुत्र जी इट ओपन्स अप मेनी विस्टास ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो इंटरनेशनल टूरिज्म है वो ज़्यादा रोजगार के रस्ते खोलता है राइट एज मेनी होटल्स एंड लेजर सेंटर्स आर डिपेंडेंट ऑन द टूरिस्ट ज़्यादा जो लेजर सेंटर्स ने या होटल्स ने वो कितने डिपेंड करते हैं ओबवियसली नंबर ऑफ टूरिस्ट से डिपेंड करते हैं ज़्यादा लोग उत्थे जाते हैं उन्होंने बिजनेस फ्लोरिश होंगे ने जिहदे करके सिर्फ तो सिर्फ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ही रेज नहीं होंदा किहड़े लोगों की गल कर रही है मैं लोकल्स की गल कर रही हाँ सो जो लोकल पीपल ने पर्टिकुलर कंट्री के पुत्र जी सिर्फ उन्होंने लिविंग स्टैंडर्ड ही रेज नहीं होंदा बल्कि इकोनॉमी भी अपलिफ्ट होंदी है सो दैट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट एडवांटेज सो मैं तुहानूं दस रही हूं किदां लिखना है लिसन केयरफुली फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्टार्ट विद थैंक्स टू एयर ट्रांसपोर्टेशन इंटरनेशनल tourism has become the backbone of many economies of the world. International tourism opens up many vistas of employment विस्तार होंदा पुत्र जी रस्ते कि रस्ते खोलता है इंटरनेशनल टूरिज्म रोजगार के रस्ते खोलता है एग्जैक्टली एज मैनी होटल्स एंड leisure centers are dependent on the tourists एग्जैक्टली बैकपैकर्स उन्होंने डिपेंड करते तो लास्ट की लिखना एज अ कॉन्सिक्वेंस नॉट ओनली द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द लोकल्स इज रेज्ड बट आल्सो हैव्स टू स्पर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री बट आल्सो इकोनॉमी इज अपलिफ्टेड इदा भी लिख सकते हो क्लीयर पुत्र जी दैट इज ऑल अबाउट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडवांटेज सो एंड अप जरूर करना पॉजिटिव साइड तो कम टू सैकेंड वन सो हुण आपां गल करते हैं सैकेंड पॉजिटिव दी अगेन सानू सबनों पता है कि जो स्टेटेड ट्रेंड है दैट इज ऑल अबाउट कॉन्टैक्ट वध गया है ना लोगों का आपस दे विच डिफरेंट कंट्रीज के लोगों का सो दैट इज ऑल अबाउट दिस ट्रेंड प्लेज अ पाइवटल रोल इन कंसोलिडेटिंग द रिलेशनशिप्स अमंग डिफरेंट नेशंस व्हिच रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एनहांस ग्लोबल पीस हार्मनी स्टेबिलिटी इंटीग्रिटी एंड फ्रेटर्निटी
सो द मीनिंग की है पुत्र जी हुण आपां कहना चाहते हैं कि जिहड़ा कॉन्टैक्ट वध रहा लोगों का जिहदे नाल की हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ दे रिलेशनशिप्स भी तो मजबूत होंदे पे ने ना रिलेशनशिप्स कंसोलीडेट होंदे पे ने सो रिलेशनशिप मजबूत हो रहे हैं दैट मीनस जिहड़े पहला लड़ाइयां झगड़े हथियारां नाल हुंदे सी जिन्होंने आपां बोलदे हां आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स वो रिड्यूस हो गए ने बहुत ज़्यादा घट गए ने हुण उदां दी लड़ाइयां झगड़े नहीं हुंदे जिहदे करके ग्लोबल लैवल ते शांति बनी है पीस हुंदी है शांति इंटीग्रिटी हुंदी है यूनिटी स्टेबिलिटी हुंदी है स्थिरता हारमोनी हुंदी है हैविंग द सेम थॉट्स फ्रेटर्निटी हुंदी है भाईचारा ये सब कुछ बनया हुआ है दैट इज अगेन पॉजिटिव सेकंड वन आई वुड गोइंग टू राइट हियर yes I will write here second point that is you will start with the stated trend plays a pivotal role in consolidating the relationships among different nations which are helpful to reduce the chances of armed conflicts. Yes, armed conflicts means हथियारां नाल लड़ाइयां करनियां एग्जैक्टली वॉर जिवें पहला हुंदी सी हथियारां नाल यस ओहदे चांसेस घट गए ने एंड एनहांस ग्लोबल पीस हारमोनी इंटीग्रिटी स्टेबिलिटी and fraternity yes okay it's clear second one now come to the last one सो हुण थर्ड एडवांटेज आप लिखांगे रिलेटेड टू टैलीकम्यूनिकेशन ये पुत्र जी एग्जाम्पल जरूर लिख दो जिदा आप गल की दुबई की या फिर थाईलैंड की एग्जाम्पल लिख सकते हो सो मोर दैन 70% ऑफ थाईज आर इनवॉल्व इन टूरिज्म इंडस्ट्री सो आप यही चीज़ लिखिया जिदे करके इतने लोकल पीपल का की है लिविंग स्टैंडर्ड रेज होंगे तो इकोनॉमी भी अपलिफ्ट होंगी कि करके सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री दे करके क्लियर कम टू लास्ट वन दैट इज टेलीकम्यूनिकेशन सो आई वुड से टेलीकम्यूनिकेशन हैज shrunk the whole world into a small global village as people are able to stay in touch with each other through the mobile phone through the internet exactly so they can communicate to anyone no matter where and when exactly पुत्र जी so it's only because of telecommunication दे करके साडा जिहड़ा पूरा वर्ल्ड है वो श्रिंक हो गया छोटे जे ग्लोबल विलेज दे विच क्योंकि जिहड़े लोग ने वो एबल ने कम्यूनिकेट कर सकते हैं किसी नाल भी पूरे वर्ल्ड दे विच एंड मैटर नहीं करता कदों करनी है गल या फिर कित्थे करनी है डजंट मैटर क्लियर सो ए पॉजिटिव तुसी लिखोगे थर्ड वन इन टर्म्स ऑफ टेलीकम्यूनिकेशंस आई होप इट्स क्लियर सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टास्क 2 मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नवे टास्क के नाल तक बाय हैव अ नाइस टाइम